Hello student, today I am going to teach you painting chapter number 7. Cubism, Surrealism and abstract art. Persistence of memory. This is the picture. Persistence of memory. Medium, oil on canvas, date 1931. Artist Salvador Dali and collection Museum of Modern Art, New York. Salvador Dali is the most famous surrealist painter. He was a Spanish painter, filmmaker and writer. He adopted highly realistic technique. He continued with his practice of drawing which he had mastered in his youth while studying. After a brief period of experimenting with form, he used his drawing to depict the world of absurd, unusual and stranger element. सल्वादोर दली अति यथार्थवादी युग का सर्वाधिक प्रसिद्ध कलाकार है। वह स्पेन का चित्रकार, लेखक तथा फिल्मकार है। उसने अपने चित्रों में अति यथार्थवादी तकनीक का प्रयोग किया। जिस कला की उसने अपने युवा काल में महारत हासिल की थी, उसी का उसने जीवन के वर्षों में प्रयोग किया। चित्र में आकार का थोड़े समय के लिए प्रयोग करने के बाद उसने अपनी कलाकृति में बेतुके, अरीतिक एवं चित्रित विषयों एवं वस्तुओं का चित्रण किया। Persistence of memory, painted in 1931, is a fine example of surrealist movement. The bare landscape and cleanliness depicted in this painting could be regarded as a life after all wars. After all women have died, the only object in the painting that give life and which can be associated with people are the melting clocks. In this painting, the melting clock look very realistic and create the sense of disturbed mind, which we all seen in most of his painting. Dali's own style was academic and precise, but his subject matter was from his dream or nightmares. The unconventional create grouping of object in Dali picture has a symbolic meaning. These soft watches create new and unpleasant images and cruel over another as they would over rotting foods. Their form create a jewels like a ornament covering the watch surfacing. All his painting create a different kind of pictorial language. None of Dali paintings represent reality. They look as if nothing more than a few objects here and there which are out of place. Persistence of memory अति यथार्थवादी आंदोलन का प्रतिनिधि चित्र है। चित्र में असज्जित या बिना पेड़ों के प्रकृति और भूदृश्य तथा शांति को चित्रित किया है। यह चित्र युद्ध के बाद का दृश्य प्रस्तुत करता है, जिसमें सारे मनुष्यों के मर जाने के कारण शून्यता या एकदम शांति दिखाई देती है। इस चित्र में जीवन से संबंधित यदि कुछ भी वस्तु है तो वे विलीन और लुप्त होती घड़ियां हैं। डाली के इस चित्र में विलीन होती घड़ियां वास्तविक लगती हैं तथा मानव के अशांत मन को दर्शाती है। यही सब कुछ उसकी अन्य कलाकृतियों में देखने को मिलता है। डाली की अपनी शैली शास्त्रीय तथा सुस्पष्ट है, परंतु उसकी विषय वस्तु उसके सपनों या दो सपनों से ली गई है। डाली की कृतियों में वस्तुओं का
सामूहिकरण उन्मुक्त ढंग से किया गया है तथा उनका सांकेतिक अर्थ है। ये कोमल घड़ियां नई तथा अप्रिय बिंब उभारती हैं। चींटियां एक दूसरे के ऊपर चढ़कर रेंगती हैं, मानो सड़े गले खाने के ऊपर से गुजर रही हो। उनके आकार घड़ी की सतह को पूर्ण रूप से ढकते हुए हीरे जवाहरातों के गहनों जैसे लगते हैं। उसके सारे चित्र एक भिन्न प्रकार की चित्रमय भाषा जैसे लगते हैं। डाली का कोई भी चित्र वास्तविकता को प्रस्तुत नहीं करता है। उन चित्रों को देखने से ऐसा लगता है मानो कुछ वस्तुओं को छोड़कर सभी कुछ अस्वाभाविक है। Though he was a great artist with talent and imagination, he had a way of doing unusual thing to draw attention to himself, which many at times have annoyed those who love his art as well as his critics. His eccentric theatrical manners was as prominent as his artwork and attract lot of public attention. He died in 1989 and left behind him fantastic work such as Velveteen Lodge, Holquins, and Small Bottle of Rum, and Honey is a sweeter than blood. अगर हम डाली की बात करते हैं तो डाली अपने योग्यता एवं कल्पना के आधार पर एक महान कलाकार माना जाता है या माना जाता था। यद्यपि उसका काम करने का तरीका अपना ही था, जिससे अरीतिक वस्तुओं का चित्रण ऐसा होता था कि वे वस्तुएं दर्शक को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। उसका प्रस्तुतिकरण का तरीका ऐसा था कि कभी कभी वो अपने प्रशंसकों को तथा कला आलोचकों को नाराज कर देता था। उसका थिएटर से संबंधित सनकी व्यवहार भी उतना ही विशिष्ट था जितना उसकी चित्रकला विषय ख्याति थी, जिससे जनता का ध्यान आकर्षित होता था। उसकी मृत्यु 1989 में हुई तथा उसने अपने पीछे वेल्वेटिन लॉज, हॉलक्यून जैसी महान एवं प्रख्यात कलाकृतियां विरासत में छोड़ी। उसी प्रकार जैसे मैंने बताया, स्मॉल बॉटल ऑफ रम एंड हनी स्वीटर देन ब्लड उसकी ख्याति प्राप्त कृतियां थी। नेक्स्ट है ब्लैक लाइन्स। This is the picture, black lines. See these pictures? Okay. Medium, oil on canvas. Date December 1913. And artist Wesley Kandinsky. Collections Solomon R. Guggenheim Museums, New York. Wesley Kandinsky was born in 1866 in Russia. He was a famous painter and art theoretician of his time. Kandinsky is one of the founder figure of abstract painting. He laid the foundation for non-representational art in his three important series: Impressionism, Improvisations, and Compositions. His work were combination of abstractions and geometric. He wanted painting to be abstract like music, accompanied contrast, yellow
accompaniment, angular structures are some of his great work. His work had an enormous influence on the next generation of artists. वेस्ली कंडिस्की जो थे, उनका जन्म 1866 में रूस में हुआ. वह अपने समय का प्रसिद्ध कलाकार तथा कला सिद्धांतवादी माना जाता था. कंडिस्की अमूर्त कला के जन्मदाताओं में से एक है. उसने असाध्य शल्मोलक्य कला को 3 मुख्य भागों में बांटा: प्रभाववाद, काम चलाऊ प्रबंध और संयोजक कला. उसके चित्र अमूर्तकरण तथा जामातीय विचारधारा का मिश्रण थे. उसके चित्रों में accompanied contrast, yellow accompaniment, एंगुलर स्ट्रक्चर नामक चित्र बहुत प्रभावशाली है. उसके चित्रों का कलाकारों की आगामी पीढ़ी पर बहुत प्रभाव पड़ा, या आने वाली जनरेशन पे बहुत प्रभाव पड़ा है. ब्लैक लाइन्स वॉज डन बाय कंडिस्की in the year 1913. As the name suggests, the lines look as if they were put on with Indian ink, but actually black paint was used. In these compositions, a group of lines in a particular corner added different meaning according to the arrangement. Like other painting of this period, his work shows a simplicity and pure diagram, as if skeleton have no flash on it. The color spot look as if applied by finger of a giant hand and not brushes. They with the line and its effect. ब्लैक लाइन का जो नामक चित्र को कैंडिस्की ने 1913 में बनाया. जैसे चित्र के शीर्षक से संकेत मिलता है, ऐसा लगता है कि रेखाएं भारतीय स्याही द्वारा खींची गई हैं, परंतु वस्तुएं ये रेखाएं काले रंग से खींची गई हैं. इस संयोजना में व्यवस्था अनुसार चित्र के एक विशेष कॉर्नर से खींची गई रेखाओं से एक भिन्न अर्थ निकलता है. इस युग में बने अन्य चित्रों की भांति उसके चित्र में सरलता तथा शुद्ध रेखा लेख ऐसे चित्रित किए हैं मानो कंकाल में मांस हो रहा हो या मांस हो ही नहीं. रंगीन धब्बे ऐसे प्रतीत होते हैं मानो उन्हें ब्रश से नहीं वरन विशालकाय हाथों की उंगलियों द्वारा बनाए गए हों. ये धब्बे चित्र में खींची गई रेखाओं तथा उनके प्रभाव से बहुत मेल खाते हैं. कैंडिस्की के लिए रेखाएं और आकार तथा रंगों का अपना अलग ही अर्थ है तथा वे अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से प्रयोग में आते हैं. उसके अधिकांश चित्रों में खींची गई रेखाएं अपूर्ण है तथा ऐसा प्रतीत होता है मानो उनकी अपनी ही जिंदगी है. अपने जीवन के अंतिम भाग में उसने पेरिस में गुजारे तथा 1944 में उसकी मृत्यु हो गई या डेथ हो गई. सो स्टूडेंट, ये जो ब्लैक लाइन्स है एक्चुअल में जो बनाया है कैंडिस्की ने, उसके बारे में ये पेंटिंग है. So you have to read these lessons, or I think you understood this chapter clearly. Thank you.